ایک ایسے وقت میں جب بہت سے انسان کورونا کی تبدیل شدہ شکل اور اس وبا کی امکانی تیسری لہر سے خائف ہیں، یہ سوال ابھر رہا ہے کیا کورونا وائرس کمزور پڑ رہا ہے یا اس کے خلاف کیے گئے اقدامات مؤثر ہیں؟ اس صورتحال میں وبا کو شکست دینے کے لیے احتیاط اور احتیاط ہی مؤثر ہتھیار ہے۔ ایشیا 24 کے ساتھ میں شوکت ساحل۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کا وزیر اعظم کی میٹنگ میں شرکت کرنے کا اعلان۔ شہر سری نگر میں مزید کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت۔ اور ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 28 پیسے کا اضافہ۔ سب سے پہلے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے 24 جون کو دلی میں طلب کی گئی کل جماعتی میٹنگ میں شرکت کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر آج منعقدہ عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کی ایک میٹنگ میں لیا گیا ہے۔ میٹنگ کے بعد عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعظم کے دعوت نامے پر دلی جائیں گے اور وہاں اپنا موقف ان کے اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے سامنے رکھیں گے، جبکہ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دفعہ 370 کے معاملے پر ان کا موقف واضح ہے اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے میٹنگ رکھی ہے 24 تاریخ کو 3 بجے دہلی میں، اور جموں کشمیر کے لیڈروں کو دعوت دی ہے اس میں شرکت کے لیے۔ سوال اس بات کا تھا کہ جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے اور ہم اس دعوت نامے میں جانے والے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو موقف ہے اس کو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو بھی بریف کریں گے یہاں پہ، اور دہلی میں بھی ان کو بریف کریں گے کہ ہم نے وہاں کیا کیا، کیا کہا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہی ہم نے آپ سے کہنا ہے۔ ہمارا موقف جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موقف جو ہے وہ ہے اور رہے گا۔ جن کو انہوں نے بلایا ہے، محبوبہ جی، مجھے، طارق عامی صاحب کو، اور جن کو بھی ہم میں سے بلایا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ دعوت جو ہے یہ لیڈروں کو الگ الگ دی ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ ان سب لیڈروں کو اپنی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ انڈیویجول لیڈرز ہیں، انڈیویجول پارٹیز ہیں، ان کو بھی ویسے ہی دعوت نامہ آئے گا جیسے ہمیں آیا۔ میرا جو دیکھیے، یہ بھی بات کریں گی اپنی طرف سے، میں بھی بات کروں گا۔ ہمارا جو موقف ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ بھی ہیں، یہ بھی جائیں گے، اور طارق عامی صاحب بھی ہیں۔ کوئی بھی ایجنڈا ان کی طرف سے فکس نہیں ہوا ہے، اور بلکہ ہمارے جموں کشمیر اور لداخ سمیت لوگوں کے جو کنسرنز ہیں، جو امیدیں ہیں اس میٹنگ سے اور ہم سے، ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کے تارے تو مانگیں گے نہیں، لیکن وہی مانگیں گے جو ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہی رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب ہر بات شروعات کرتے تھے ڈائلاگ کے ساتھ۔ وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہیں، پر ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، جیسے پورے ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے جیل میں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا۔ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا دوسرے ڈیٹینیز ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا، اگر وہ واقعی چاہتے تھے
कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। इधर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि अपनी पार्टी अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली का इजलास एक मकसद पर मबनी सियासी अमल का पेश खेमा साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के सरपरस्त आला सईद अल्ताफ़ बुखारी वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए इजलास में शिरकत करके अवामी तर्जुमानी करेंगे। हमारी पार्टी की मीटिंग थी जिसकी सदारत हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब ने की और तमाम पार्टी ने उनको अथराइज़ किया कि वो दिल्ली जाएंगे और 24 तारीख को मीटिंग में हिस्सा लेंगे और हमारा पक्ष वहाँ पर रखें। 5 अगस्त को जो आर्डर यहाँ पर हुआ 2019 को, और लोगों के जहनों में कुछ खदशात आए, परेशानियाँ हुई, उसको दूर करने के लिए अगरचे हमने कुछ कोशिशें की, जैसे नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ नौजवानों का या ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन हम चाहेंगे आज की बार हम जो कवानीन यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उसको फर्दर सीमेंटिंग हो। और 370 को लेकर या 35A को लेकर जो मामला चल रहा है जिसमें बहुत सी सियासी पार्टीज़, इंडिविजुअल्स कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी कहेंगे कि इसमें सूरत आनी चाहिए ताकि लोगों के जहनों में जो इंतशार है वो दूर हो जाए। हम अपनी ताकत से लोगों के मंशे के मुताबिक और लोगों को जो ज़रूरत है उसके मुताबिक बातचीत करेंगे। वो वहाँ से क्या चाहते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन हमें अपनी ताकत से अपनी बात रखनी चाहिए, जिसका मैंने इशारा किया। तो हमें कोई रुकावट नहीं होगी, हम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की बका के लिए ठीक तरह से बात करें। शुमाली ज़िला बारामूला के कुंजर इलाके में एक तेंदुए ने कम से कम 22 भेड़ों को हलाक जबकि 4 दीगर को जख्मी कर दिया। कुंजर इलाके के रिम्बलपुरा गांव में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक तेंदुए ने मेराजुद्दीन ऋषि के गाँव खाने में घुसकर कम से कम 22 भेड़ों को हलाक जबकि 4 को जख्मी कर दिया। याद रहे कि बडगाम में एक मासूम बच्ची को तेंदुए की जानिब से जानबाह करने के बाद महकमा जंगली हयात ने इन जानवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है और ज़िला बडगाम में ही अब तक 3 तेंदुए पकड़े गए हैं। मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल आज 28 पैसे महंगा होकर एक नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। इससे कल मई में पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। जिला श्रीनगर में कोरोना लॉकडाउन में की गई नरमी के तहत जिला इंतजामिया ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत सड़क के दोनों अतराफ दुकानें खोलने, मजीद कारोबारी और दीगर सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दी है। दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज मजीद दुकानें खुली रहीं, जिसकी वजह से बाजारों में गैर मामूली चहल पहल और रौनक देखने को मिली। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि टीकाकारी और कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल दरामद वबाई बीमारी को शिकस्त देने के लिए हथियार हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक अमल में मजीद नरमी लाई गई है, लिहाजा लोग एहतियात के साथ रोज़मर्रा की मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। कमेटी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ और पार्शियल रिलैक्सेशंस दी गई हैं जिला श्रीनगर में, जिसमें जो आउटडोर बाजार और मार्केट्स हैं वो हफ्ते में 5 दिन खुल सकते हैं, लेकिन जो इंडोर कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सिर्फ 25% कैपेसिटी पर ही खुले रहेंगे। उसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू और डेली नाइट कर्फ्यू ये श्रीनगर जिले में जारी रहेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अभी ऑरेंज जोन में है। पार्क्स एंड गार्डन्स को खोलने के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इस पर हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पूरी सिचुएशन का कंप्लीट असेसमेंट करने के बाद मैं आपके जरिए सभी को अपील करना चाहता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब हमारे पास हथियार अगर कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जिसमें वैक्सीनेशन भी शामिल है। अगर आज भी कोई शख्स मास्क पहनने से महरूम है, इसका मतलब है कि वो सुसाइड कर रहा है, क्योंकि
इस वायरस को यहाँ पर पूरी दुनिया में आए हुए 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तो इसलिए फिर मैं वही बातें दोहराऊंगा कि सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और हैंड सैनिटेशन का ध्यान रखें और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं। जब पार्शियल अनलॉक कर दिया जाता है तो हमारी चैलेंज भी बढ़ जाती है। लॉकडाउन के दौरान वायरस को कंट्रोल करना या उसके स्प्रेड को कंट्रोल करना, वायरस के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना पॉपुलेशन के बीच में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑलमोस्ट नील हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। लेकिन पार्शियल अनलॉक में क्योंकि मूवमेंट होती है, इसलिए हमारी चैलेंज बढ़ जाती है, और जितनी चैलेंज बढ़ती है उतनी ही हम सब के लिए जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। किसी भी शख्स को ये हक नहीं है, किसी भी शख्स को ये राइट नहीं मिला हुआ कि वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट करे, दूसरों को एक्सपोज करे टू द इन्फेक्शन। इसलिए मैं कहूंगा कि सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, और जो इन्फोर्समेंट कार्ड हमने बनाए हैं वो भी मॉनिटर करेंगे। जब भी कोई शख्स विदाउट मास्क नजर आएगा, इन्फोर्समेंट कार्ड कार्रवाई करेगा। मेरी गुजारिश है कि वो मौका ही मत दें, खुद एज हम सब मिलकर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसका पूरा ख्याल रखें, और तभी जाकर हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है अभी कोरोना के खिलाफ, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इश्बेट 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना फीडबैक हमें देते रहें और हमारी YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।